वालेकुम सलाम क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। सिम्टम एनालिसिस पे आपने काम शुरू किया है रेस्पिरेटरी सिस्टम में? क्योंकि सिम्टम एनालिसिस हो सकता है कि इस तरह की क्वेश्चन एमसीक्यूज बन के आए। किसी ने बेट्स बुक से गाइड लिए कल जो हमने पढ़ा था रवियन क्लास में? अभी मिस माह से मैंने कहा है कि अपलोड कर दे लेक्चर को, तो आगे इंशाल्लाह असेसमेंट स्टार्ट कर देते हैं। थैंक यू महा फॉर अपलोडिंग द लेक्चर। थी वो हमने कर लिया, ठीक है। वालेकुम सलाम नीलम।
So what are the equipments you need to conduct the thoracic assessment? स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको स्टेथोस्कोप पे कोई असाइनमेंट दी है? स्टेथोस्कोप, व्हाट इज अ स्टेथोस्कोप? इसकी लेंथ कितनी होती है, इसका डायफ्राम किस लिए यूज करते हैं, इसका बेल किस लिए यूज करते हैं, इसकी ट्यूब की लेंथ कितनी होती है? ठीक है, बेट्स में बहुत अच्छा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। टेप मेजर, चेस्ट एक्सपेंशन को मेजर करने के लिए, एंड पेन एंड वॉशेबल मार्कर, और एग्जामिनेशन ग्लव्स, ड्रैप, यस दीज आर एग्जामिनेशन लाइट, एंड फेस मास्क। फेस मास्क जो है वो हो सकता है ऑप्शनल हो, कि अगर आपका क्लाइंट नॉर्मल है, तो स्नीज या इस तरह से है तो आपको फिर वो पहनना पड़ता है। Any risk factor for respiratory disease is any history of smoking, back years, and previous X years exposure to smoke, कब से वो exposure used, and results, sedentary lifestyle, immobilization, age, environmental exposure is any dust, chemical, asbestos, air pollution, obesity, family history, any present health history include upper respiratory infection, allergies, recent screening or diagnostic assessment, last chest X-ray, medication, treatment, use of aerosol or inhalant for any purpose if he had been used, exercise tolerance when patient breathing comes to normal after the uh, exertion, how soon do vital signs return to normal after exercise? These are the Walaikum Salam Lubana. This is the health history. This is very important and chronological pattern, and cough. Yes, cough is a what type of a cough patient experiences a dry, moist, wet, productive, or is hacking, barking, whooping. This is a type of cough, and how it relieves, how long it persists, what time it um, it exists, and onset, its duration, its pattern, its activity, time of the day, whether some people जो कि कुछ फ़ोन पे बात करने लगते हैं तो उनको कॉफ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एंड severity effect on the activities of daily livings, and wheezing, associated symptoms and treatment and effectiveness, sputum. This is very important. I told you that in asthma, patient has a different characteristics of a sputum. In COPD, patient has a different characteristics, and pulmonary edema, and as well the white color, yellow color, green color, blood streak. इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये अपेयर हो सकते हैं। Its amount, presence of blood hemoptysis on coughing, and consistency, pattern of production. Health history. History of presenting illness is a shortness of breath. शॉर्टनेस, अगर पेशेंट आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की आपको हिस्ट्री दे रहा है, ऑनसेट सडन और ग्रेजुअल, frequency intermittent or persistent, pattern
when where condition occurs, relationship to the exercise, time of the day, eating, wheezing, severity, effect on the activity, COPD, respond to the treatment. This is a history of present illness. And other terms for the shortness of breath are orthopnea, two pillow technique. When your client is sitting, he often use two pillow as as he lie down, the respiratory problem may get worsened. Proximal nocturnal dyspnea, sometimes patient at night due to awakes due to cessation of breathing. And past health history is a respiratory infection or disease if your patient had underwent any um, infection with any trauma, accident, this patient has any underwent the surgery, and chronic conditions of other symptoms. It may be associated with other symptoms to influence the respiratory system. Family health history, tuberculosis, yes, emphysema, lung cancer, allergies, asthma. Other considerations include employment, place, its exposure, current or past residence, travel, and hobbies. These are the family history. फैमिली हिस्ट्री में अगर आ जाता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में, तो आपको ये 4-5 जो है ना वो लिख देनी होती है. बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस फैमिलीज में रन हो सकती है बिकॉज ऑफ एक्सपोजर. एंड एम्फाइसीमा लंग कैंसर होता है, एलर्जीज एंड एस्थमा तो होता है. सब्जेक्टिव डेटा, योर क्लाइंट विल रिपोर्ट ही हैड अ चेस्ट पेन. यस, चेस्ट पेन को किस तरह से आपने रेक्टिफाई करना है कि ये चेस्ट पेन रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है. ठीक है. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया, orthopnea and wheezing, cough, blood-stick, sputum, hemoptysis and chest pain, trauma, surgery. Medications, environmental exposure, the social history, as health promotion activities, allergies, exercise tolerance, and assistive devices. Your client told you that sometime I use oxygen therapy at homes. I use the nebulizer sometimes. Activity exercise that I do frequently exercise in evening, morning, but it is a tolerable. But after but from last 20 days, it is uh, becoming some worsen. Ji Habiba, good evening. Medication, do you use any? You can get the history. Position for examination, yes, this is for very important. अच्छा ये होता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम असेसमेंट आप एंटीरियरली और पोस्टीरियरली दोनों तरफ से कर रहे होते हो. ठीक है. बेहतर ये होता है या तो आप आगे से उसको उसकी असेसमेंट पूरी कर लो, देन goes to the posterior side. मोस्ट ऑफ दी उनका काम तो नहीं होता. आप देखा करें कि आपके जो असेसमेंट के शुरू शुरू में जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी तो ऑब्वियसली चीज़ों का आइडिया तो था. खुद से पढ़ने का भी थोड़ा सा था और शौकत खानम में जो है ना मैं अपने जो रेजिडेंट होते हैं उनके साथ मिलके असेसमेंट करते होते थे और वो मुझसे पूछते थे कि हाँ ये इस तरह ऑब्वियस जो इम्पोर्टेंट होते थे न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एब्डोमेन सिस्टम. इस पे मैं बहुत ज़्यादा मुझे बड़ा अच्छा प्रैक्टिस थी. कोई भी पेशेंट आना तो मैं उस पर
उनके साथ इन्वॉल्व होके वो देखता था कि हाँ, और सेम चीज़ें बिलीव करें, जो चीज़ें आप ये पढ़ रहे हैं यही चीज़ें होती हैं, कोई डिफरेंट नहीं होता। बिकॉज बेट्स आई थिंक सो वो भी पढ़ते हैं, ठीक है, वेबर जनरल नर्सिंग के लिए है, लेकिन बेट्स तो एमबीबीएस डॉक्टर भी पढ़ते हैं। तो मेरी तैयारी, हमारी तैयारी जो है, हम अपने स्टूडेंट को बेट से भी करवाते हैं। ओके, फिजिकल एग्जामिनेशन, थोरेसिक असेसमेंट। इफ यू थोरेसिक असेसमेंट में आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? आपने सबसे पहले प्राइवेसी, देन वार्म एयर एंड विल वेल लाइट। आपके हाथ ठंडे नहीं होने चाहिए, ठीक है, इतने ठंडे नहीं कि सर्दियों का मौसम है और आपने अपने क्लाइंट को अपने हाथों से मजीद डिस्कम्फर्ट करना है, ठीक है, इस तरह नहीं होना चाहिए। और लाइट अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। इंस्पेक्शन ऑफ चेस्ट, यस, दिस इज द फर्स्ट स्टेप वी एवर डू। अब इसके लिए आपने एक्रोनियम सिम्टम्स लफ्ज याद रखना है। सिम्टम्स, एस स्टैंड फॉर शेप ऑफ द चेस्ट। शेप ऑफ अ चेस्ट, चेस्ट की शेप किस तरह से है? नॉर्मल चेस्ट है, पिजन चेस्ट है, बैरल चेस्ट है, स्किफॉइड है, ठीक है, बाज़ तो अंदर को धसी हुई होती है और बाज़ बाहर को निकली हुई होती है चेस्ट, ठीक है, पिजन शेप होती है बाज़, ठीक है, बाज़ ऊपर नीचे होती है ड्यू टू एनी सर्जरी या ड्यू टू एनी एक्सीडेंट, ड्यू टू एनी ट्रॉमा, ठीक है। सिम्टम्स, सिमेट्री ऑफ द चेस्ट, यस, सिमेट्री देखिए, बायलैटरल है, ठीक है, यूनिलेटरल है। मूवमेंट ऑफ द चेस्ट, आप अपने क्लाइंट को कहें कि मुंह से ब्रीथ करे या नाक से ब्रीथ करे, तो उसमें आप अपने क्लाइंट की रेज एंड फॉल जो है चेस्ट की, उसको नोट करें, बट योर क्लाइंट शुड नॉट बी अवेयर कि आप उसको रेस्पिरेशन पैटर्न को, उसकी मूवमेंट को देख रहे हैं। पोजीशन ऑफ अ ट्रैकिया, पिगमेंटेशन एनी स्कार, यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। पोजीशन ऑफ अ ट्रैकिया, मोस्टली नॉर्मली जो है वो ट्रैकिया मिडलाइन होता है। एनी स्कार, एनी पिगमेंटेशन, हो सकता है कि उसको प्रीवियसली कोई जो है वो ट्रिकोस्टमी या उसकी सर्जरी या कोई इस तरह से हिस्ट्री हो, ठीक है। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन टाइप क्या है जी? एब्डोमिनो थोरेसिक है, थोरेसिको एब्डोमिनो है। फीमेल्स में कौन सी होती है, मेल में कौन सी होती है, आप इसको बुक से कंसल्ट करें। ऑदर पल्सेशन एंड एपेक्स बीट, यस, थिन पीपल्स में बाज़ ये हो रहा होता है कि उनको लेफ्ट साइड पे पल्सेशन बड़ी वाजे जो है ना आते थे। मेरी भी पल्सेशन बाज़ हार्ट बीट, हार्ट की जो है ना वो नज़र आ रही होती है, जो थिन पीपल होते हैं। एंड मिडकॉस्टल इंटरकॉस्टल स्पेसेस, यस, यू हैव टू सी दिस कि वो स्वलन तो नहीं है, ठीक है, हो सकता है प्लोराइटिस की वजह से वो इन किसी इन्फेक्शन इनसाइड लंग्स की उन्होंने प्रेशर डाला हुआ हो इंटरकॉस्टल स्पेसिस पे। सुप्राक्लेविकुलर फोसा, यस, सी द सुप्राक्लेविकुलर फोसा एज वेल। अच्छा, थोड़ा आवाज़ का प्रॉब्लम है आज, थोड़ा तबीयत सही नहीं है, हो सकता है कि आपको सही तरह से वॉइस ना सुनाई दे रही है। थोरेसिक इंस्पेक्शन, थोरेसिक कंटोर शेप पहले बताया हुआ है आपको, जो नॉर्मल डायमीटर ऑफ चेस्ट होता है 1:2 होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर लिटल, बड़ी अच्छी इसको मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अब नॉर्मल पिजन चेस्ट, बैरल चेस्ट, फनल चेस्ट एंड रिकेट चेस्ट में ये डायमीटर जो है वो एबनॉर्मल होता है। सिमेट्री, यूर बल्जिंग, सिमेट्री बल्जिंग है, चेस्ट बल्जिंग एंड प्लूरल एफियन की वजह से एक साइड जो है ना वो बाहर को आ रही है, एक अंदर को आ रही है। न्यूमोथोरेक्स, kyphosis and fractures, tumors, retraction, collapse are fibrosis lung and thickened fossa,
thoracic surgery. Super clavicular fossa को क्या देखेंगे? Shallow fossa in emphysema and deep fossa in the collapse of fibrosed lungs में इसकी supraclavicular fossa की characteristics है. Yes, this is a shape of a chest. Hidden chest देखें जी किस तरह से है. Scoliosis, sideline curvature and kyphosis आगे को निकली हुई चेस्ट एंड बैरल क्या हो रहा है जी गोल ड्रम लाइक चेस्ट है. ठीक है. These are deformity of chest. Respiratory pattern, you have to see the rate, you have to see the rhythm, depth, effort, respiratory movement, respiratory rate 16 to 18, breath per minute, and tachypnea is greater than 20, bradypnea is less than 12, shallow and respiratory um, muscular paralysis, elevated intra-abdominal pressure, pneumonia or pleurisy. Depth, shallow breathing है, deep breathing है and fast. Agitation is any intention. Deep and shallow, severe metabolic acidosis में small breathing, deep और shallow breathing हो रही होती है. And respiratory movement is abdominal breathing, male, adult and child. Abdominal breathing इसमें होती है जी adult, male and child में. And thoracico-abdomen, this is a female adult. Effort quality, unlabored, labored, dyspnea, orthopnea, shallow, grunting. Respiratory rhythm, chain stalk breathing. Yes, this is all the pattern I have chosen from your Bates book, and this is a basic fundamental when we study the vital signs. उसमें ये सारे पैटर्न हमें पढ़ाई जाती है. अच्छा, थोड़ी सी ब्रेक ले लें 5 मिनट की.
जी वालेकुम सलाम। नीलम आयशा, नो वॉइस का मतलब है कि मैंने ब्रेक की हुई थी ना 5 मिनट की, तो आवाज़ कैसे आएगी। और आपदा, आप हमेशा लेट आती हैं। चलो आपकी मिड टर्म में कारकर्दगी देखते हैं सारी, कि आपने कितना परसीव किया। पल्पेशन, check through the following points: position of a trachea, anterior posterior expansion, vocal formatus, apex beat, tenderness and fluctuation and crepiting, palpating the crepitations and bronchi. These are the steps, these are the things you are doing in a palpation. आप सबको ये तैयार हो जानी चाहिए, याद हो जानी चाहिए, हम palpation में ये steps कर रहे हैं। Thoracic expansion, posterior level of the 10th rib, posterior thorax जब आप expansion chest चेक कर रहे हो ना, उसमें लेवल जो होता है 10th rib होता है, ठीक है। Thumb should separate 3 to 5 centimeter. Feel during the quiet inspiration and expiration, and palpate during the deep inspiration. Should be symmetrical. आप देखो पेशेंट को इंस्पायर और एक्सपायर के दौरान जो है ना, एक्सपायरेशन के दौरान आप नोट करें कि आपके जो थंब के दरमियान डिस्टेंस है वो इक्वल रेज एंड फॉल हाथों की इक्वल होनी चाहिए, और थंब के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल होनी चाहिए। इफ़ नॉट, फिक्स रिब एंड एटिलेक्टेसिस। इफ़ नॉट, फिक्स रिब, अगर मिसाल के तौर पे रिब्स की अप एंड डाउन नहीं हो रही, इट्स मीन एटिलेक्टेसिस समथिंग, lungs collapse and massive hydrothorax pneumonia or pleural thickness, thickening का प्रॉब्लम है। vocal formitis, tactile formitis, yes, palpate the vibration of the chest over the lungs, feel from the speak or the sounds, use the palmar and the ulnar surface। ये जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है ना, पोस्टीरियर में आप इस तरह से कर सकते हो कि हमारी चेस्ट वाइब्रेशंस को चेक करने के लिए आप अपने क्लाइंट को कहें कि आप 99 बोलें, लेकिन इसका एक सीक्वेंस होता है। आप चेक करें वाइब्रेशन, वोकल फॉर्माइटिस नॉट शुड बी टू मच हैवी, टू मच लो नहीं होनी चाहिए, दोनों साइड पे बराबर होनी चाहिए, ठीक है। पल्पेट द वोकल साउंड्स बाय आस्किंग द क्लाइंट टू 101 कहें, 99 कहें या 101 अपने क्लाइंट को, आपने नहीं कहना, अपने क्लाइंट को कहें कि रिपीट करें। नॉर्मल इंक्रीज or decrease pleural friction and formitis in the cellulose exudation in the pleura due to pleurisy, holding the breathing disappeared, tuberculosis, pleurisy, uremia and tactile formitis increase. When tactile formitis increase, condition that increase density of the thoracic tissue, lung tissue ट्यूमर है, इन्फेक्शन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ लंग्स, टिश्यू फॉर्मेशन ऑफ लंग्स इनसाइड हो गई है, तो ऑब्वियसली टैक्टाइल फॉर्मेटिस एक साइड पे ज़्यादा होगी, एक पे कम होगी। कंसोलिडेशन ऑफ नमूनिया, नमूनिया में कंसोलिडेशन हो जाती है चेस्ट की, एंड सम लंग कैंसर। टैक्टाइल फॉर्मेटिस डिक्रीज इन द obstruction of the transmission of vibration। अब जो वाइब्रेशन का मैकेनिज्म है उसमें अगर obstruction आ गई है, thorax, bronchial obstruction and COPD and emphysema। palpation, position of trachea, normal is the midline, push effusion, upper mediastinal tumor and, and palpable repetitions are bronchi and and normal is the fifth intercostal space net calculate percussion। You are basically doing to
टैपिंग ऑफ द चेस्ट, आप देख रहे हो चेकिंग अंडरलाइंग एरिया फॉर द एयर फ्लूइड एंड सॉलिड। आपने ये देखना है कि आपकी चेस्ट के नीचे एयर है, सम फ्लूइड है और सॉलिड मैस है। मेथड वन शुड बी फ्लेक्सीमीटर, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट ऑफ द लेफ्ट मिडल फिंगर। लेफ्ट मिडल फिंगर का जो आपका जॉइंट है इंटरफेरेंजियल, वो आपका फ्लेक्सीमीटर होगा और फ्लेक्सर होगा राइट मिडल फिंगर। आपने फ्लेक्सीमीटर को फ्लेक्सर के ऊपर स्ट्रोक करना, ठीक है। इमीडिएट ऑर्डर अप टू डाउन एंटीरियर टू पोस्टीरियर, दिस इज इमीडिएट order, and percussion sounds should be flat, dull, hyperresonant, hyperinflation and timpani। जब हमने एक एब्डोमेन सिस्टम असेसमेंट की थी तो उसमें बड़ा अच्छा हमने इसको देखा था कि कौन सी होती है साउंड्स, लेकिन ये अब डिस्क्रिप्शन ऑफ लंग्स है, बाद का हाइपर रेजोनेंस आ रही होती है, रेजोनेंस आ रही होती है, ठीक है। तो वो डिफरेंट डिजीजेस में साउंड्स चेंज होती है। Method of percussion is the anterior percussion, apical percussion, clavicular percussion, and posterior percussion and lateral percussion। इंशाल्लाह मैं आज आपके लिए सारी प्रेजेंटेशन मैं थोड़ा सा ठीक नहीं हूँ, होपफुली अभी बैठूंगा तो आपकी सारी प्रेजेंटेशन जो है वो अपलोड कर दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। डायफ्रैग्मेटिक एक्सक्लूशन, डायफ्रैग्मेटिक एक्सकर्शन इज अ वेरी सिंपल थिंग, ये तो एग्जाम में आएगा लाजमी, ठीक है। तो इसमें देखेंगे डायफ्रैग्मेटिक एक्सकर्शन, हाउ टू कैलकुलेट इट, you can best understand from Bates or Weber and Janet. I have already discussed it with you, the method to calculate the diaphragmatic excursion. Lung sounds, resonance heard over the lungs tissue, dullness which may be produced by the pneumonia tumor infection or fluid collection, hyperresonance, hyperresonance or even tympani, which may result from confluent air collection as seen in a pneumothorax and emphysema। लंग साउंड्स की जो नोट्स हैं वो आपको ये याद हो जानी चाहिए। Resonance, and these are the normal sounds। Hyperresonance is emphysema, tympani cavity or the pneumothorax, dullness is a hydrothorax, atelectasis and flatness passive hydrothorax। और बोन पे भी फ्लैट साउंड जो है वो सुनाई देती है। थैंक यू फॉर विशिंग एंड प्रेइंग। Auscultation, you are doing in auscultation is a pitch, intensity, quality and duration। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन लाजमी हम देते होते हैं कि एबनॉर्मल साउंड की करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिस्क्राइब करेंगे, एग्जाम में आते रहते हैं, जो फाइनल एग्जाम होता है ना उसमें। हाउ is the respiratory system working and what the lung areas are not working, then secretion fluid or obstruction blocking the air passage, hold the stethoscope firmly but not tightly over the intercostal spaces, and use the diaphragm or bell. Ask patient to breathe normal deeply with the mouth open and patient to tell you it's if dizzy, lighted. Listen for the entire cycle, inhalation and exhalation, and tune out the heart sounds and systematic। ओके, ऑस्कल्टेशन में आप स्टेथोस्कोप से बेसिकली आपके वो मुंह से सांस पेशेंट को इनकरेज करना है। तो ये ऑर्डर ऑफ ऑस्कल्टेशन, ये देखिए बड़े टेक्निक आपको हमेशा के लिए याद हो जानी चाहिए। दिस इज द ऑर्डर। Normal breath sounds, abnormal breath sound, adventitious sounds, and both are resonance। These are the sounds which are supposed to be। अच्छा, ये मैंने एक
बुक में भी बड़ा अच्छा दिखाया गया कि ब्रोंकियल साउंड्स, अगर बैक साइड पे आप आएँ तो ट्रेकिया पे आपको, ब्रोंकस पे आपको ब्रोंकियल साउंड्स, आगे ट्रेकिया पे ट्रेकियल साउंड्स होंगी। ठीक है, ब्रोंकस जहाँ पे ब्रोंकस डिवाइड होता है। ठीक है, कौन सी साउंड? ब्रोंकियल साउंड, ब्रोंकियो वेजिकुलर साउंड्स, ब्रोंकियो वेजिकुलर साउंड्स। Abnormal breath sounds, abnormal vesicular breath sounds, abnormal bronchial breath sounds, abnormal bronchiovesicular breath sounds. Crackles, bronchi, and pleural friction are the adventitious sounds. Mechanism. इसका mechanism ये है कि during inspiration air flow passage passes through secretions in the airway to rupture the bubbles or to open the collapse of the bronchi due to adhesion by secretion. अच्छा, ये classification of crackles, ओके, अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी, अकॉर्डिंग टू डायमीटर, ये आप इसको ज़रा देख लीजिएगा। एबनॉर्मल साउंड की डिस्क्रिप्शन मैंने डाली हुई है। साइट्स वेयर यू कैन हेयर द साउंड्स फ्रॉम काई विजिज, व्हाट इज द मैकेनिज्म एंड काजेज। मैं आपकी ये अपलोड कर देता हूँ, बट यू हैव टू टेक द हेल्प फ्रॉम बुक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रोंकाई, सिबिलेंट, bronchioli and bronchi, sonorous is the trachea and main bronchi. Sites from community, bronchi की community, pleural friction rib, what is the mechanism and where you can hear this vocal resonance, ये सारी आपको मैंने बताई हुई है। नर्सिंग डायग्नोसिस ये होगी। अच्छा, क्लास इंशाल्लाह मैं आपको अपलोड कर देता हूँ आपकी प्रेजेंटेशन। ठीक है, आप पूरे 6 बजे जो है ना ऑफलाइन हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर तक कर देता हूँ, सिस्टम पे बैठता हूँ, तो इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है जी।